Imagine you are at Diwali and the lights are sparkling. Suddenly, one tiny bulb fuses and the whole string of light goes black. But in your house, an electric bulb fuses, but the other lights and other electrical appliances are still glowing and still turned on. Have you ever wondered why? What's the mystery behind? It's nothing but the two connections in electrical circuit, the series connection and the parallel connection. Let's children, in today's class, let's deep dive into two types of connection and we'll understand in detail what are these two connections and how one is beneficial over the other. Why in electrical wiring we always prefer parallel connection, and why we are using series connection in string of lights, in Diwali lights, in Christmas lights. So understand these two type of connection with one more simple examples that relates to you. Say suppose there are three friends who are standing holding each other hand, and all of a sudden one friend releases the hand. What will happen to the other two? The other two will also fall off, and the one who released the hand also falls off, right? So that breaks the connection between three. So if one connection is lost, the other connections are also lost. So this is how we can understand our series connection. So series connection में क्या होता है बच्चा? All the conductors in the devices, right? All the conductors in the electrical circuit are connected to one another with one circuit, that is with one single conducting path. But when you're talking of a parallel connection, अब इसको भी हम ऐसे example से समझते हैं. Say suppose there are three friends holding a rope and each of their rope is in the hands of their teacher, right? And if teacher releases one of the rope, the student will fall off, right? But the other students will remain there. Similarly, in parallel connection ऐसा ही हो रहा है. Each and every conducting path for a conductor is different. So parallel connection और series connection को सबसे पहले समझने के लिए समझना बहुत जरूरी है. S for series, S for single path. तो जब भी सीरीज कनेक्शन की बात होती है, the path is always singular path, right? So single path is there. So when you're talking of parallel connection, P for parallel, P for plenty of paths, means many paths are there within the electrical circuit. Each appliance has its own individual path in case of parallel connection, and each appliance is having a same path in case of a series connection. अब इसको समझने के लिए थोड़ा और समझते हैं. ये आपने समझ लिया कि सिंगल पाथ है सीरीज में और पैरेलल पाथ, प्लेंटी ऑफ पाथ्स है पैरेलल कनेक्शन में. अब हम क्या समझेंगे? एंड्स को समझते हैं. से सपोज देयर इज वन कंडक्टर, राइट? It has its end 1 and it has its end 2. And we have one more conductor. This is the end 1 of the second conductor. This is the end 2 of second conductor. Right, children? When end 2 is connected to end 1 or 1 is connected to 2, right? Means when two different ends of the conductor are connected together, we say that they are connected in series connection. Got it, children? अगर connection 1 to 2 का है, means end 1 से end 2 connected है, or we can say that end 2 is connected to end 1, then we say that the appliances or the conductor are connected in series connection. Now, if we are talking of parallel connection, अगर हम parallel connection की बात करते हैं, so there are two resistors, right? So resistors are also the conductor. They are partial conductors, right? So आपके पास two resistors हैं. This is 1 and this is 2. This is 1 and this is 2. So when same ends are connected together, means connection 1 to 1 और 2 to 2 का है, तो ऐसे कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कनेक्शन. आप इसमें देखेंगे 1 2 1 and 2, राइट? सिंगल कंडक्टिंग पाथ आ रहा है, तो उसमें कैसा होता है?
2 to 1 और 1 to 2 का कनेक्शन होता है. सो ऐसे कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन. राइट चिल्ड्रन, सीरीज कनेक्शन में सिंगल कनेक्टिंग पाथ होता है एज फॉर सीरीज, एज फॉर सिंगल कंडक्टिंग पाथ. एंड पैरेलल कनेक्शन में वी हैव प्लेंटी ऑफ पाथ, conducting path. In case of each appliance has its own conducting path. So if one appliance stops working, the other will not get affected in case of parallel connection. But if one appliance stops working, in case of series connection, the other appliances will also stop working. Now let us understand more. हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को वन बाय वन समझते हैं एंड वी आर गोइंग टू डू द डेरिवेशन राइट विद रिस्पेक्ट टू the Ohm's law, because Ohm's law is everywhere in electricity, right? It is a base of understanding the electrical concepts. Now series connection में हमें क्या समझना है बच्चा? Here I have taken 2 resistors, so we may connect. क्या हम 2 ही कनेक्ट कर सकते हैं या हम 3 कनेक्ट कर सकते हैं? It's not like that. It does not depend upon the number of resistors we are connecting together. We can connect numerous resistors, we can connect n resistors together, right? We can connect n resistors together in case of a series connection. अब series connection में जब हम n resistors connect कर रहे हैं, इसको देखेंगे. यहाँ पे पहले हम एक basic example से समझते हैं, where I have taken 2 resistors, one of R1 and one of R2. पहले electrical circuit समझते हैं, right? And we have a battery. This is a battery, children. This is a battery of V volts, right? इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है? V volts पोटेंशियल है. अब क्या होता है सीरीज कनेक्शन में? पोटेंशियल डिवाइड होता है बट करंट रिमेन सेम. Say suppose the current in the circuit is denoted by capital I, and we know the direction of the current, that is from the positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery. That is the direction of electric current, right? That is a conventional direction, and direction of flow of electrons is just opposite of that. But हमें यहाँ पे किसको फोकस करना है? हमें यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को फोकस करना है. तो इसको बहुत ध्यान से समझते हैं. So when current starts flowing through the conductor, I current, so R1 will receive that same current I, and R2 will also receive the same current I. Why? Because in series connection the current remains same. सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है और सीरीज कनेक्शन में क्या डिवाइड हो जाता है? पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है. राइट चिल्ड्रन, अब आप इसमें एक दो बातें और समझेंगे जो आपको आगे न्यूमेरिकल्स, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते ही बनते हैं और ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे. राइट, अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स चिल्ड्रन हियर. फर्स्ट, अब ओम्स लॉ कहाँ रोल प्ले करता है? बहुत जब आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे तब बच्चे समझने में प्रॉब्लम करते हैं. क्यों? क्योंकि वो बेसिक चीजों पे ध्यान नहीं देते. तो हम यहाँ पे समझते हैं कि ओम्स लॉ कैसे हेल्प कर रहा है. ओम्स लॉ होता है V इक्वल्स टू IR. मैंने आपको पहले भी समझाया था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, राइट? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. मीन्स अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल कम होगा. इस पूरे सर्किट का पोटेंशियल है V वोल्ट्स. अब R1 एंड R2 आर 2 रेजिस्टर्स. अभी हमें नहीं पता कि कौन से रेजिस्टर का वैल्यू ज्यादा है, किसका कम है. तो हम एक हाइपोथेटिकल एजम्पशन लगाते हैं, लेट R1 इज मोर देन R2. ये समझेंगे, लेट R1 इज मोर देन R2. अगर मैं बोल रही हूँ R1 इज मोर देन R2 तो यहाँ पे आप ये समझेंगे कि जो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल होगा दैट इज V1. V1 का वैल्यू विल बी मोर देन वैल्यू ऑफ V2. अब ये कैसे क्वेश्चंस होते हैं? ये आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं. आपके एसएक्यूज में भी कई बार आपसे ए और बी पार्ट में सर्किट देके पूछ लेते हैं. तो उस केस में आपको ये रिलेशंस यूज करने आने चाहिए. राइट, अगर हमारी R1 की वैल्यू R2 से ज्यादा है तो V1 की वैल्यू V2 से ज्यादा होगी. बट करंट को यहाँ हम कंपेयर नहीं कर सकते. व्हाई? बिकॉज ये एक सीरीज कनेक्शन है और सीरीज कनेक्शन में करंट थ्रू आउट द सर्किट सेम फ्लो होता है. करंट डिवाइड नहीं करता. राइट, करंट डज नॉट डिवाइड. राइट चिल्ड्रन, तो अब हम इसमें ओम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं. अकॉर्डिंग टू
इसको हम डिराइव करते हैं, बिकॉज जब सीरीज कनेक्शन पे आएगा आपके पास R1 R2 है, बट इस पूरे सर्किट का अफेक्टिव रेजिस्टेंस या फिर इस पूरे सर्किट का कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा, ये हम फाइंड आउट करेंगे. सो हम उसके लिए किसकी हेल्प लेंगे? ओम्स लॉ की हेल्प लेंगे. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, राइट, वी हैव V इज इक्वल टू IR. ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू IR है, राइट. अब पोटेंशियल अक्रॉस, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जो चीज डिवाइड हो रही है उसी से स्टार्ट करेंगे. सीरीज सर्किट में पोटेंशियल डिवाइड होता है, तो हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे. पोटेंशियल अक्रॉस R1, तो वो क्या होगा? आपका V1 होगा. पोटेंशियल अक्रॉस R1 क्या होगा बेटा? V1, दैट इज इक्वल टू IR1. तो I आपका एज इट इज रहेगा एंड R1 विल बी देयर. तो हम इसमें फर्दर वी डोंट हैव वैल्यू. हम सिमिलरली क्या फाइंड आउट करेंगे? पोटेंशियल अक्रॉस R2 विच इज गिवन बाय V2. करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर. लैंग्वेज को समझेंगे. पोटेंशियल इज अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर. ये मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सो दैट इज IR1 2, right? Now what we will do? Total potential. अब ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि पोटेंशियल न्यू भी क्रिएट नहीं होगा, ना ही पोटेंशियल लॉस्ट होगा विद इन द सर्किट. सो जो आपका टोटल पोटेंशियल V है, राइट, सो आपका टोटल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल अक्रॉस R1 प्लस पोटेंशियल अक्रॉस R2. सो टोटल पोटेंशियल V is equal to V1 plus V2. Very simple. So अब आप V का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे in terms of I and R, and V1 का वैल्यू हो जाएगा IR1 and V2 का वैल्यू हो जाएगा IR2. तो आप I कॉमन ले लेंगे राइट साइड में से, आपके पास क्या आ जाएगा? R1 plus R2 and here you have IR. Right children? So I will cancel I. तो आपका टोटल रेजिस्टेंस, आप इसको क्या बोलते हैं आप समझें. आपको एग्जामिनर कोई भी वर्ड यूज कर सकता है. दिस इज टोटल रेजिस्टेंस, दिस इज कंबाइंड रेजिस्टेंस, एंड दिस इज ऑल्सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू R1 प्लस R2. ठीक है. So R is equal to R1 plus R2. This is when the resistors in the circuit are 2. What will happen if the resistors in the circuit will be 3, 4 and more than that? So हम इस derivation से समझ चुके हैं. In case of series connection, the effective resistance or the combined resistance or the total resistance is always equal to the sum of resistances, individual resistances in a given electrical circuit. So अगर आपके पास 3 resistors होते हैं तो उसमें जो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा या फिर कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 प्लस R2 प्लस R3 फॉर 3, राइट. अगर आपके पास n रेजिस्टर्स हैं, सो इस केस में R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन अप टिल Rn, right? As many resistors are there in the circuit, you are going to sum up all the resistances and you will get the combined resistance. तो अब हमने सर्किट समझा, हमने सीरीज कनेक्शन के लिए 2 इंपॉर्टेंट पिलर समझे, और ये भूलना नहीं है क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आप हमेशा ये 2 पॉइंटर्स सोच के अपने सर्किट में आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे. दैट इज करंट रिमेन सेम एंड द पोटेंशियल डिवाइड्स. इफ यू आर टॉकिंग ऑफ सीरीज कनेक्शन, right? So in series connection, current which each resistor will receive will always be the same, and that is equal to the total current, right? और इन सीरीज कनेक्शन द पोटेंशियल कीप्स डिवाइडिंग. तो आपको ध्यान रखना है जो I1 होगा, लेट्स से द करंट फ्लोइंग थ्रू R1 विल बी I1, लेट्स से द करंट फ्लोइंग थ्रू R2 विल बी I2. सो इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2. सो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, तभी आप इसके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कर पाएंगे, तभी आप इसके सर्किट बेस्ड क्वेश्चंस कर पाएंगे. बट पोटेंशियल डिवाइड्स, यस पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है अक्रॉस R1 एंड अक्रॉस R2. अब पोटेंशियल डिवाइड कैसे होता है वो हमारी रिलेटेबिलिटी. कई बार हम अपना आंसर आप खुद
कंफ्यूज हो जाते हो कि आपने सही किया, ऑल्दो आपने सही किया होता है, बट आपको कैसे पता चलेगा? आप ओम्स लॉ का रिलेशन यूज कीजिए। अब आप दो तीन चीजें एक साथ समझेंगे। पहला कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा पोटेंशियल, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मींस जिस रेजिस्टर की वैल्यू ज्यादा होगी उसको ज्यादा पोटेंशियल मिलेगा, जिस रेजिस्टर की वैल्यू कम होगी उसको कम पोटेंशियल मिलेगा। दूसरा, जो आपके इंडिविजुअल पोटेंशियल्स आएंगे उनका सम हमेशा टोटल पोटेंशियल के इक्वल होगा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिसका ध्यान रखेंगे तो आप न्यूमेरिकल्स में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मोस्टली बच्चे थ्योरी के साथ प्रिपेयर हो जाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन तो हम स्ट्रगल करते हैं। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं 2026 बोर्ड एग्जाम की 50% पेपर कॉम्पिटेंसी है, तो आप मान के चलेंगे कि आपको अप्लाइड क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में अप्लाई दिखेंगे। नाउ मूविंग अहेड, अगर हम आगे चल के बात करते हैं, वी हैव द पैरेलल कनेक्शन, राइट। हमारा हम किसके बाद सेकंड कनेक्शन की बात करेंगे, दैट इज पैरेलल कनेक्शन। P फॉर पैरेलल, P फॉर प्लेंटी। तो जब हम पैरेलल कनेक्शन की बात कर रहे हैं, सो देयर आर प्लेंटी ऑफ कंडक्टिंग पाथ्स, देयर आर मल्टीपल कंडक्टिंग पाथ। ठीक है, ये हमारा बैटरी है। सो आई हैव पुट 3 bulbs in a parallel connection. Will each bulb receive the same current? It may be possible if all 3 are of same resistance, then each will receive the same current, right? If all the different bulbs are having different resistors, let's say this is R1, this is R2, this is R3, so हम इसको समझते हैं कि R1 maximum है more than R2 and R2 is more than R3। तो आप फिर से ओम्स लॉ, कौन सा बल्ब, आपको क्वेश्चन कैसा आ जाएगा, which bulb is going to शाइन मोर ब्राइटली और ब्राइटेस्ट। अब ये आप कैसे पता करेंगे, इसके लिए आपको दो पिलर्स पता होने चाहिए, दैट इज ऑफ द पैरेलल कनेक्शन। वन, द करंट डिवाइड्स। सीरीज में करंट डिवाइड नहीं करता, पैरेलल में करंट डिवाइड करता है। सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड करता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिवाइड नहीं करता। मींस पोटेंशियल से सपोज ये बैटरी V वोल्ट का है, तो अगर मैं आपसे पूछूं बल्ब 1, 2 और 3 को कितना पोटेंशियल मिल रहा है, आप बोलेंगे मैम पोटेंशियल डिवाइड नहीं कर रहा। मींस बल्ब 1 के अक्रॉस भी पोटेंशियल V होगा, बल्ब 2 के अक्रॉस भी पोटेंशियल V होगा, और बल्ब 3 के अक्रॉस भी पोटेंशियल V होगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल तो डिवाइड करता ही नहीं है, इट नेवर डिवाइड्स। तो अब करंट डिवाइड कर रहा है भाई। अब करंट कैसे डिवाइड करेगा, किस बल्ब को ज्यादा करंट मिलेगा, किस बल्ब को कम करंट मिलेगा, ये कैसे पता करेंगे? फिर से ओम्स लॉ पे जाओ। ओम्स लॉ की रिलेटेबिलिटी हमें बताती है कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये हम आज से तो नहीं पढ़ रहे, जब से हमने ओम्स लॉ पढ़ा हम ये बोलते चले आ रहे हैं, तो अब तक हमें पता होना चाहिए। सो व्हेन आई एम सेइंग I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R चिल्ड्रन, दैट मीन्स मैक्सिमम रेजिस्टेंस विल रिसीव लीस्ट करंट। तो जिस रेजिस्टर की वैल्यू सबसे बड़ी होगी उसको सबसे कम करंट मिलेगा। सो R1 इज मैक्सिमम, सो I1 विल बी लीस्ट, देन it will be I2 and then it will be I3। तो आप ध्यान रखेंगे रेजिस्टर 3 सबसे कम है, मींस ऑपोजिशन सबसे कम है और करंट सबसे ज्यादा फ्लो करेगा। व्हाई? बिकॉज ईच हैव मल्टीपल कंडक्टिंग पाथ, राइट चिल्ड्रन। सो अगर हम कहते हैं कि यहाँ से करंट I फ्लो करता हुआ गया है, सो R1 के थ्रू कौन सा कितना करंट पास करेगा? I1। लेट्स से R2 के थ्रू I2 एंड R3 के थ्रू I3 करंट फ्लो करके जाएगा। बट हाउ दे आर रिलेटेड ये आप समझ चुके हैं। आपको एमसीक्यू आएगा या असर्शन रीजन आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सीधा सीधा ओम्स लॉ के पास चले जाओ, अंडरस्टैंड द रिलेशन एंड जस्ट अप्लाई इट, यू आर गेट गुड टू सॉल्व द होल क्वेश्चन। अब जरा हम इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। डेरिवेशन के लिए मैंने आपको समझाया था कि पहले आप टोटल करंट निकालो, जो चीज डिवाइड हो रही है उससे स्टार्ट करते हैं, और इसमें भी हम किसकी हेल्प लेने वाले हैं? ओम्स लॉ की हेल्प लेने वाले हैं। According to Ohm's law, right? According to Ohm's law, children, V is equal to IR, ठीक है? Which implies I is equal to V upon R. Now, current through R1.
अब आप हम इस सर्किट के रिस्पेक्ट में देखते हैं, दिस इज R1, दिस इज R2। अब करंट थ्रू R1 क्या है, हम मान के चल रहे हैं I1 है, करंट थ्रू R2 क्या है, वी आर एज्यूमिंग दैट इज I2, right? And the potential across both the resistors will remain same, means R1 will receive V1 V and R2 will also receive V। अब हम क्या करेंगे, हम करंट निकालते हैं, करंट फ्लोइंग थ्रू R1 क्या हो जाएगा बच्चा, I1, right? That is I1, current flowing through R1, that is, we call it I1, which is equal to V तो same है, and upon R1। Similarly, current flowing through R2 will be I2 given by V upon R2। So we know that अब करंट I flow करता हुआ गया, कुछ करंट यहाँ चला गया, कुछ करंट यहाँ आ गया, राइट? सो अब करंट डिवाइड हो गया। सो जो बट जो टोटल करंट है, अब इस सर्किट में देखो, यहाँ तक कितना करंट आएगा, I, यहाँ पे कितना पहुंचा I1, यहाँ पे कितना पहुंचा I2। इस पॉइंट पे अगर हम एमीटर लगाएंगे कितना करंट होगा, I1, यहाँ पे भी कितना करंट होगा, I1, यहाँ पे कितना करंट पहुंचा, I2। अब यहाँ पे बी टर्मिनल के बाहर करंट, अगर आप यहाँ पे अपना एमीटर लगाएंगे तो ये एमीटर किसकी रीडिंग दिखाएगा, I1 प्लस I2, बिकॉज करंट लूज नहीं होगा, there will not be any new current which appears into the circuit, there will not be any lost current which comes into the circuit, so the total current remains constant, but the current divides within the circuit in case of parallel connection। So children, we have I which is equal to I1 plus I2। So हम values put कर देते हैं, I की value है V upon R, I1 की value है V upon R1 and I2 की value है V upon R2। So हम क्या कर सकते हैं, V common लेके we can cancel, so what are we left with, 1 upon R equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2। So हमने ये parallel connection with respect to two resistors किए। अब इसके ऊपर एक MCQ बना था, राइट? वो एमसीक्यू में आपको थोड़ा सा ना क्या कर दिया, उन्होंने वैल्यू चेंज कर दी और उन्होंने इसको रीअरेंज करके लिख दिया, उसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, R1 R2 और आप R2 प्लस R1। तो अगर आपके पास सर्किट में टू रेजिस्टर्स हैं और वो पैरेलली कनेक्टेड हैं तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस, दिस इज द रेसिप्रोकल, ठीक है, दिस इज द रेसिप्रोकल। तो ये किसकी वैल्यू आई है बच्चा, ये वैल्यू आई है 1 अपॉन R की, विच इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2। ठीक, अब R की वैल्यू क्या आएगी, विच रेसिप्रोकल कर देंगे, क्यों, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में आपके पास रेसिप्रोकल वैल्यू आती है। तो जब भी आपका आंसर आएगा आप उसकी वैल्यू रेसिप्रोकेट करके लिखेंगे, विच इज R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1। Got it, children? So this can also be expressed like this, and this was the MCQ which was there in many question papers। And children, if they do not visualize things, conceptual learning के साथ visualization बहुत important है, practice बहुत important है, that will take you ahead one step, right children? So this is for two resistors। What happens when there are three resistors? So effective resistance will be the sum of those three resistance, reciprocal of the sum of those R1, three resistances, 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. For n resistors, do the counting till goes till n, right? So now this is how we have understood कि what will be the effective resistance in case of series connection and what will be the effective resistance in case of parallel connection। अब मैं आपको एक चीज समझा रही हूँ जो बहुत सारी चीजें कंक्लूड करवाएगा। We have understood series and parallel, ठीक है, सीरीज भी समझा हमने, पैरेलल भी समझा, बट अब आप इसके कुछ कंक्लूजन समझेंगे। अब कंक्लूजन्स क्या है जो हम चीजें कंक्लूड कर पा रहे हैं। सो फर्स्ट कंक्लूजन जो आपका होगा, जब भी आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, राइट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलेंगे आप, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हैं, कंबाइंड रेजिस्टेंस, या फिर आप उसको बोल सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस, राइट? सो ये जो टोटल रेजिस्टेंस होगा will be more than all the resistors placed in a circuit, means the total resistance, let's talk about this circuit। So iska jo total resistance hoga will be more than R1 and the total resistance will also be more than R2। अब second conclusion क्या है, which is very important, जो आपका सेकेंड कंक्लूजन है वो ये बोलता है कि हम सीरीज कनेक्शन कब यूज करते हैं, व्हेन वी नीड टू रिड्यूस द ओवरऑल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट।
right? Why series connection is used? To reduce the overall resistance of the circuit. So series connection reduces, ये पॉइंटर्स आप साथ में लिखेंगे बेटा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी क्वेश्चन सॉल्विंग में, राइट? अल्टीमेटली हमारा मोटिव यही है कि हम अच्छे से समझ के हम क्वेश्चंस कर पाए। बहुत सारे बच्चों को टॉपिक पता होता है बट वो क्वेश्चंस नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते। सीरीज कनेक्शन रिड्यूसेस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो आपको एक ध्यान रखना है कि मैं सीरीज कनेक्शन कब यूज करूं? जब मुझे ओवरऑल रेजिस्टेंस रिड्यूस करना है, राइट? दैट मींस आई वांट मोर करंट टू फ्लो। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको एक सर्किट दिया गया है, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो करवाना है, तो आप कौन सा कनेक्शन को प्रेफर करेंगे? तो आप सीरीज कनेक्शन प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि सीरीज कनेक्शन में हम रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर देते हैं। जब हम उसमें रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर देते हैं तो मैक्सिमम करंट विल फ्लो, ठीक है? उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। सो व्हाट आर द टू कंक्लूजंस? आई एम रिकॉलिंग, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो, कंबाइंड रेजिस्टेंस हो या टोटल रेजिस्टेंस हो, कुछ भी बोल लो, जो आपका टोटल रेजिस्टेंस आता है वो हमेशा हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है। सेकेंड पॉइंटर आपको कल कंक्लूजन ये बताता है कि सीरीज कनेक्शन जब भी हम यूज करते हैं जब हमें ओवरऑल रेजिस्टेंस ड्रॉप करना होता है। सो व्हेनेवर वी नीड टू रिड्यूस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, we always prefer to use the series connection. Now let us have some conclusions for the parallel one as well. अब पैरेलल के भी हम कुछ कंक्लूजन देख लेते हैं। पैरेलल कनेक्शन हमारे सेम टू कंक्लूजन है हमारे पास। सो फर्स्ट कंक्लूजन सेज दैट जो आपका टोटल रेजिस्टेंस है या इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, दैट विल बी इवन लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है? अब क्या बोल रहा है? जो टोटल आर है मींस इफेक्टिव रेजिस्टेंस है इज इवन less than the least resistance of the circuit। क्या बोल रही हूं मैं, जरा समझो। से सपोज मैं यही वाला सर्किट लेते हैं, दो एग्जांपल्स लेते हैं। लेट्स से R1 का वैल्यू इज 2 ओम, ठीक है? और R3 का वैल्यू, R2 का वैल्यू विल बी 3 ओम्स, ठीक है? आपने दो रेजिस्टेंसेस लिए, अब आप इसको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे। सो दैट इज 1/R इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/3। सो एलसीएम विल बी 6, राइट? दैट इज 3 प्लस 2 गिव्स यू 5/6। सो आर को आप कैसे निकालेंगे? रेसिप्रोकल करके, 6/5 विच इज इक्वल टू 1.2 ओम्स, ठीक है? तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1.2 ओम्स। जो टोटल रेजिस्टेंस क्या आया है? 1.2 ओम्स। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपके पास सर्किट में दो रेजिस्टेंसेस थे, 2 ओम्स के और 3 ओम्स। एक रेजिस्टर है 2 ओम्स का और सेकंड रेजिस्टर है 3 ओम्स का। सो 2 ओम्स का रेजिस्टर है वो लीस्ट रेजिस्टेंस है, और जो आपका टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है वो उससे भी छोटी वैल्यू का है। मींस जब भी आप पैरेलल कनेक्शन पे काम कर रहे हैं तो आपका जो टोटल इफेक्टिव और कंबाइंड रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम हो जाता है। Is that clear? Now let's talk about the second conclusion. When do we use parallel connection? अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है, so when do we use parallel connection? We use parallel connection to reduce the overall resistance of the circuit, to reduce the overall resistance of the circuit. Right, children? So we need to understand this thing कि जब भी हमें पूरा ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है या हमें ज्यादा करंट फ्लो करवाना है, तब हम क्या करते हैं? हम पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं, राइट? और जब हमें ओवरऑल इंक्रीज करके कम करंट फ्लो करवाना है तो हम सीरीज कनेक्शन यूज करते हैं। तो मुझे जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है तो मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगी, जब मुझे रेजिस्टेंस डिक्रीज करना है सर्किट में तब मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगी।
राइट। नाउ मूविंग अहेड, अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर ले। हमने समझा सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। सीरीज मतलब सिंगल कंडक्टिंग पाथ, पैरेलल मींस प्लेंटी और मल्टीपल कंडक्टिंग पाथ, राइट। इफेक्ट ऑफ बल्ब फ्यूजिंग, राइट, इफेक्ट ऑफ वन बल्ब फ्यूजिंग। अगर आपका सिंगल कंडक्टिंग पाथ है, एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा। रिमेंबर आई हैव गिवन यू एग्जांपल स्टार्टिंग ऑफ सेशन में कि एक फ्रेंड, तीन फ्रेंड्स है, तीनों ने एक दूसरे का हैंड होल्ड कर रखा है। इफ वन फ्रेंड लूजेस द हैंड, द अदर टू विल आल्सो ड्रॉप ऑफ। तो इसका क्या मतलब है कि इफ वन बल्ब स्टॉप glowing or it gets fused, the other bulbs also stops glowing. But in case of parallel connection, if one fuses, it doesn't affect the others. The other bulbs keep glowing. अगर आप ब्राइटनेस की बात करते हो, खुद से सोचो, सीरीज में आप क्या कर रहे थे, आप ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हो, एड अप हो रहा है, और इसमें ओवरऑल रेजिस्टेंस रिड्यूस कर रहा है। अब इसमें आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया है, तो करंट कम फ्लो करेगा, राइट, कम करंट कम फ्लो करेगा, तो जो भी आपका पोटेंशियल है वो डिवाइड हो गया है, और सारे के सारे बल्ब कैसे नजर आएंगे, डिम नजर आएंगे। अब रिड्यूस कर दिया आपने रेजिस्टेंस, मतलब करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है, सो द सेम ब्राइटनेस विल बी देयर, क्योंकि सबको सेम पोटेंशियल भी मिल रहा है। अगर सेम ब्राइटनेस कब होगी ये भी ध्यान रखेंगे, ब्राइटनेस में वेरी ऑल्सो, राइट। इसमें आप सेम भी लिख सकते हो और आप वेरी भी लिख सकते हो। क्यों? अगर सारे रेजिस्टेंसेस आर वैल्यू के हैं, तो चाहे पैरेलल में कनेक्टेड है, अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है और आर वैल्यू के हैं, तो इक्वल करंट मिलेगा, तो ब्राइटनेस सेम होगी। बट अगर आपके रेजिस्टेंसेस का वैल्यू डिफरेंशिएट करता है, डिफर करता है, सो द वन विल हैव हाईएस्ट रेजिस्टेंस वैल्यू will receive the least current, and the one will have the least resistance value will receive the highest current, and so on. तो हमें फेरी लाइट्स लगाना है, ट्रेन कंपार्टमेंट्स, इन सब में कैसे कनेक्शन दिए जाते हैं, सीरीज कनेक्शन। हाउस होल्ड वायरिंग है, रोड लेन्स है, इन सब में कैसे कनेक्शन दिए जाते हैं, पैरेलल कनेक्शन। सो आई होप विथ दिस यू क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट कि सीरीज और पैरेलल है क्या, एंड व्हाई इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ लेट अस प्रैक्टिस टू क्वेश्चंस। अब इसको हम थोड़े से एग्जाम्पल से करते हैं। इन दिस इज जस्ट फॉर द रिवीजन। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू ब्रिंग अप all important questions which are frequently asked in the exams, so that will give you hands on practice to solve the numericals, right? तो हम numerical solve करेंगे। till then make sure you're revising all the concepts well. तो अब हम end करते हैं by discussing these two questions. ये questions देखते हैं। आपके पास ये दोनों रेजिस्टेंसेस हैं, आपको मुझे ये देख के बताना है हाउ the two resistances are connected to one another. Are they having series connection और पैरेलल कनेक्शन? आप 10 सेकेंड्स का टाइम लेंगे और आप ये सोचेंगे और कनेक्शंस को समझेंगे, चेक करेंगे, इज इट हैव अ सिंगल कंडक्टिंग पाथ और इज इट हैविंग अ मल्टीपल कंडक्टिंग पाथ। तो वो आपको आंसर कर देगा कि वेदर दिस इज अ सीरीज कनेक्शन और दिस इज दैट इज अ पैरेलल कनेक्शन। तो आप देखेंगे कि एक कंडक्टिंग पाथ ये आ रहा है और ये फर्दर डिवाइड हो रहा है, मीन्स हमने क्या कर दिया, कंडक्टिंग पाथ डिवाइड कर दिए। तो ये कैसा कनेक्शन होगा, द टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट चिल्ड्रन। थोड़ा सा स्पेलिंग एरर हो गया। Now children, let's talk about this one. This seems to be little heavy to us, but absolutely it is not. अब इसमें आप दोनों टाइप के कनेक्शंस देख पा रहे हैं, आप पैरेलल भी देख पा रहे हैं और सीरीज भी। कैसे देख पा रहे हो समझो। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए पहले हमें वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। कैन यू लुक एट दिस, हाउ द टू आर कनेक्टेड टू वन अनदर। अब R1 कनेक्ट है, आप देखो ये बैटरी है 6 वोल्ट की, इससे कोई करंट से सपोज आई फ्लो करेगा, चाहे आई यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे भी आई पहुंच रहा है, सो विच करंट विल फ्लो थ्रू R1। R1 को कितना करंट मिल रहा है, खुद से सोचो बताओ। विल इट बी द टोटल करंट और द करंट विल डिवाइड, द टोटल करंट I विल फ्लो थ्रू R1। तो R1 के अक्रॉस अगर हम बोल रहे हैं I1 है, राइट, R1 के थ्रू I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो I1 की वैल्यू I के इक्वल होगी, दैट इज टोटल करंट के इक्वल होगी। ठीक है, I1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, टोटल करंट के इक्वल होगी। अब आ जाओ सेकंड सर्किट पर, सेकंड पार्ट पर। अब ये करंट यहाँ पे भी आई फ्लो करके गया, बट यहाँ पे कंडक्टिंग पाथ मल्टीपल हो गए, राइट। कंडक्टिंग पाथ कैसे हो गए, मल्टीपल हो गए, तो ये आई डिवाइड कर जाएगा। मींस R2 को मिला से सपोज I2 करंट एंड R3 को मिला I3 करंट। अब आप मुझे अपने कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा है आज के सेशन पे, उसमें सोच
के ये बताएंगे कि जो I2 और I3 है उसमें which one is having a more value, which resistor will receive more current and which resistor will receive lesser current. तो आप इसके लिए वापस से ओम्स लॉ पे जाएंगे. ओम्स लॉ बोलता है कि जो करंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के, राइट. सो मोर द वैल्यू ऑफ R लीस्ट द करंट विल फ्लो. सो करंट का रेजिस्टर का वैल्यू किसका ज्यादा है, R3 का ज्यादा है, 12 ओम्स है. तो I3 will be less than I2. Why? Because R3 is more than R2. Very simple. अब एक चीज और समझेंगे, राइट. इसमें मैं आपको एक चीज और समझाती हूँ. अब पोटेंशियल भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने क्या सीखा है कि जो पोटेंशियल है वो डिवाइड करता है इन केस ऑफ सीरीज, बट पोटेंशियल आपका पैरेलल में सेम रहता है. अब आप इन दोनों को कंबाइंड करेंगे, ठीक है, R1 R2 R3. तो आप इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पहले ये देखिए. आप इस सर्किट को मर्ज करके री सर्किटिंग भी करेंगे. कैसे? आपका जो R2 है वो पैरेलल में है R3 के साथ. तो हम ऐसे कैसे करते हैं, इजी करने के लिए हम लिख देते हैं 1/R23. मतलब आप कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं फॉर रेजिस्टेंस R2 एंड फॉर रेजिस्टेंस R3, राइट. So that will be equal to 1/R2 plus 1/R3. So that is equal to 1/8 plus 1/12. So LCM will be 24, right? And that will be 3 plus 2. So आपके पास आ जाएगा 5/24. So R3 का R23 का वैल्यू क्या होगा बच्चा, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे 24/5 ohms, which is equal to 4.8 ohms. राइट. तो आपका R23 का वैल्यू क्या आ गया, 4.8 ohms. अब अगर मैं रीसर्किट देखूं, क्योंकि मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया है, और लेट्स डू द रीसर्किटिंग. तो हमारा रीसर्किट करके ये हो गया R1, ये हो गया R23, राइट. ये क्या हो गया, R23. सो R1 का वैल्यू है हमारा 7.2 ohms और R23 का वैल्यू है 4.8 ohms. और इसके अक्रॉस जो बैटरी लगा हुआ है वो कितने वोल्ट्स का है, द बैटरी इज ऑफ 6 वोल्ट्स, राइट. बैटरी कितने वोल्ट्स का है, 6 वोल्ट्स का है. अब आप ये समझेंगे कि अब क्या हो रहा है, इन दोनों के पास बैटरी 6 वोल्ट्स का है. अब R1 के अक्रॉस V1 होगा और R23 के अक्रॉस V23 होगा. अब V23 से आप मतलब समझेंगे कि जो R2 के पास पोटेंशियल है और जो R3 के पास पोटेंशियल है वो सेम है, बट R1 के पास डिफरेंट पोटेंशियल होगा, क्योंकि इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस R1 के साथ सीरीज में कनेक्ट हो गया है, राइट. हमने क्या कर दिया, इनको कंबाइन करके इनका कंडक्टिंग पाथ सेम कर दिया, जो हमने 2 डिफरेंट से मल्टीपल कर दिया था एज पर द क्वेश्चन. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? तो आपको ये समझना है कि कब आपका सीरीज है, कब आपका पैरेलल है, कैसा कंडक्टिंग पाथ है, सिंगल है या फिर मल्टीपल है. पैरेलल है तो पोटेंशियल सेम रहेगा, करंट डिवाइड हो रहा है, राइट. और अगर सीरीज में है तो पोटेंशियल डिवाइड होगा और करंट विल रिमेन सेम. नाउ अब फाइंड आउट करते हैं, ओम्स लॉ देखते हैं कि वैलिडेट कर रहा है या नहीं कर रहा. सो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, V1 फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट. क्योंकि R1 और R23 को डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा है. सो R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, लेट्स से वो V1 है. सो V1 क्या होगा, IR1. तो उसके लिए मुझे I चाहिए. तो I के लिए पहले मैं कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल लूं. कंबाइंड रेजिस्टेंस जब हम निकालेंगे I1 के लिए और I के लिए, तो क्या हो जाएगा बच्चा, कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए R is equal to R1 plus R23. So that is equal to 7.2 plus 4.8. Right. So that is equal to 11 plus 12 ohms. तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया, 12 ohms आ गया. अब I क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V/R. V क्या है 6, R क्या है 12, which is 1/2, that is 0.5 एम्पियर. आप दोनों बोथ वेज यूज कर सकते हैं.
अब अगर मैं V1 फाइंड आउट करती हूँ, अब मैं आपको ओम्स लॉ वैलिडेट करना दिखा रही हूँ कि ओम्स लॉ कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अगर पोटेंशियल अगर रेजिस्टेंस ज्यादा तो उसको ज्यादा पोटेंशियल मिलेगा। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस ज्यादा किसके पास है? R1 के अक्रॉस है। सो V1 भी चेक कर लेते हैं। तो V1 क्या होगा? IR1। क्या करंट डिवाइड होगा? करंट डिवाइड नहीं होगा। करंट डिवाइड क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो हमारे पास I कितना आ गया? व्हाट इज I टू अस? 6/12 या 1/2, राइट। एंड R1 क्या है हमारा? 7.2, सो विच इज इक्वल टू 3.6 वोल्ट। अब इसी तरीके से हम V23 फाइंड आउट कर लेते हैं, विच इज IR23। सो I क्या है हमारा? 1/2 इंटू 4.8 विच इज इक्वल टू 2.4 वोल्ट। तो क्लियरली आप देख पा रहे हैं, जिस रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा है, राइट, उसको ज्यादा पोटेंशियल मिला। जिस रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है उसको कम पोटेंशियल मिला। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू गेट फॉर यू in my next session, and those questions are definitely there in your board 2026.